Hello students, today our topic is network protocol, and as you know that this is the part of unit 1 networking, and this is part number 2 of unit 1, and in this lecture we are going to discuss different network protocols. So first of all, what is network protocols? The network protocols are basically the rules and regulations um, which must we follow when we transfer data from one computer to another using computer network. So as you can see on the screen, the definition of network protocol is given. Network protocols are the set of guidelines governing the exchange of information in a simple, dependable, and very secure way. Okay. So when you talk about the term protocols, so in simple words, we can say that protocols are nothing but only the rules and regulations. But when we talk about the network protocols, so network protocols are the set of guidelines, okay, governing the exchange of information in a simple, dependable, and very secure way. So now, as far as the syllabus is concerned, your syllabus is in your syllabus, protocols are divided into two basic categories: internet protocols and remote login and file transfer protocols. Okay, and this is a very important topic. And as far as syllabus is concerned, unit first contain about 15 marks. So network protocol is a main part of this unit. So one thing is very clear, that network protocols are definitely asked will definitely be asked in your examination. Okay. So in this lecture we are going to discuss different internet protocols. So what are the different internet protocols? First one is TCP/IP, next is SMTP, next is POP3, then STTP, STTPS. These are very important protocol, especially STTP and STTPS. And most of the time the difference between STTP and STTPS is asked in examination. Okay. So as far as remote login and file transfer protocols are concerned, these are SSH, SFTP, FTP, SCP, Telnet, SMTP, TCP/IP. These are the different file transfer protocols or remote login protocols. So let's start first. The first protocol, which is very important, this is TCP/IP. So what is the full form of TCP/IP? First question that is raised in our mind, and second question is um, second question that is very important: TCP and IP are the same protocols, or are the different protocols, or or they are used together? So first of all, answer first question, that what is the full form of TCP/IP? TCP stands for Transmission Control Protocol. Okay, and as far as IP is concerned, IP basically Internet Protocol. IP is Internet Protocol. So TCP/IP is a set of standardized rules that allows computer to communicate on a network such as Internet. And second question, that how do TCP and IP differ? Both are the same or not? So IP is the part that obtains the address to which data is sent, and TCP is responsible for data delivery once that IP address has been found. And they are different from one another, but they are also meaningless without one another. सो क्वेश्चन यही आता है एग्जाम में बेसिकली कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल क्या है, आपको लिखना ये होगा, और ये दोनों कंबाइंडली पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सेपरेट पूछा जाएगा आपसे कि टीसीपी क्या है, आईपी क्या है। एक्चुअली दोनों ये कंबाइंडली ही वर्क करती हैं, और दोनों एक हम ये कह रहे हैं कि मीनिंगलेस हैं एक दूसरे के बगैर। तो ये इसीलिए इन दोनों को एक साथ ही लिखा जाता है, दोनों जॉइंटली टास्क को परफॉर्म करती हैं, तो इसीलिए दोनों को एक साथ लिखा जाता है, TCP/IP करके लिखा जाएगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP कहलाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। अब ये है क्या TCP/IP? सो बेसिकली इट इज़ अ, सेकंड पॉइंट देखिए, इट इज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रूल। तो कुछ रूल्स का, और ये बेसिकली प्रोटोकॉल है, और सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स को ही प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो ये काम क्या करेगा? दैट अलाउस कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ऑन ए नेटवर्क सच एज इंटरनेट। तो ये बेसिकली ये बताता है कि इंटरनेट पर या किसी भी नेटवर्क पर किस तरीके से कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है आपकी, ठीक। So IP is the part that obtain the address to which the data IP is the part that obtain the address to which data is sent। IP जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये बेसिकली वो एड्रेस ऑब्टेन करती है जहां डेटा को सेंड करना यूजिंग IP एड्रेस।
आईपी एड्रेस के थ्रू ये पता लगाया जाता है कि डेटा को कहाँ सेंड करना है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो फिर टीसीपी क्या काम करेगा? टीसीपी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेटा डिलीवरी वंस दैट आईपी एड्रेस हैज बीन फाउंड। तो जैसे ही आईपी एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है, तो वैसे ही आपका टीसीपी आपका डेटा को डिलीवरी इंश्योर करेगा कि डेटा प्रॉपर वे में डिलीवर हो जाए। यहाँ पर एक क्वेश्चन और ये आता है कि ये आईपी एड्रेस क्या है? देखिए, आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस है, और सभी सिस्टम्स या सभी कंप्यूटर सिस्टम और डिवाइसेस जो इंटरनेट पर कनेक्टेड हैं, सभी का एक यूनिक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस, ठीक है। जहाँ तक बात करें इंटरनेट की, तो जब हम किसी डिवाइस को लॉगिन करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं यहाँ पर, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है हमारा, वो हमको एक यूनिक आईपी एड्रेस अलॉट कर देता है। तो वो यूनिक इसलिए होता है क्योंकि वो किसी और को अलॉट नहीं होगा, वो सिर्फ आपका ही होगा। तो सबसे पहले अगर हमें आईपी एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेट करना है, तो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है सबसे पहले उसका आईपी एड्रेस गेन करेगी कंप्यूटर सिस्टम का, जहाँ डेटा को सेंड करना है, और उसके बाद जो टीसीपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये इंश्योर करेगी कि डेटा प्रॉपर वे में उस एड्रेस पर सेंड हो जाए। तो ये दोनों कंबाइंडली काम करती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल और टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका, ये आपका एड्रेस एक्सेस करेगी, ठीक है, और टीसीपी इंश्योर करेगी कि डेटा उस एड्रेस पर प्रॉपर वे में डिलीवर हो जाए। तो ये दोनों कंबाइंडली काम करती हैं, इसलिए इसको एक साथ लिखा भी जाता है, TCP/IP। और एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछा भी गया है कि टीसीपी और आईपी में क्या डिफरेंस है। आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। TCP/IP, व्हाट डज TCP/IP डू एग्जैक्टली एंड हाउ डज इट वर्क? अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है। ये तो हमें पता चल गया कि TCP/IP है क्या। TCP/IP दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन कंबाइंडली वर्क करती हैं। दोनों एक दूसरे के बगैर हम ये कह सकते हैं मीनिंगलेस है, ठीक है। आईपी प्रोटोकॉल जहाँ डिवाइस का एड्रेस एक्सेस करती है, वहाँ TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये इंश्योर करती है कि उस एड्रेस पर डेटा डिलीवर हो जाए। तो अभी हम ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि हाउ डज TCP/IP डू एग्जैक्टली क्या काम करती है, एंड हाउ डज इट वर्क्स, और ये इसका काम करने का तरीका क्या है। फर्स्ट पॉइंट, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, TCP/IP puts a lot of emphasis on accuracy, and it has several steps to ensure that data is correctly transmitted between two computers. तो बेसिकली इसका फोकस जो रहेगा TCP/IP का, इस बात पर रहता है कि एक्यूरेटली डेटा डिलीवर हो जाए, ठीक है। और इसमें एक से ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, सेवरल स्टेप्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि डेटा करेक्ट वे में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर हो जाए। सेकंड पॉइंट इज, इफ द सिस्टम वर send the whole message in one piece, and if it were to encounter a problem, then the whole message would have to be resent. Instead, TCP/IP breaks each message into packets, and those packets are then reassembled on the other end. In fact, each packet could take a different route to the other computer if the first route is unavailable or congested. देखिए, इफ द सिस्टम आर टू सेंड द होल मैसेज इन पीस, अब एक सिस्टम से, एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में मैसेज सेंड किया जाता है, ठीक है। और ऐसा लगता है कि इसको कोई प्रॉब्लम इनकाउंटर होती है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिससे कि मैसेज एक बार में कंप्लीटली सेंड नहीं हो रहा है। देन इन दैट केस मैसेज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देता है TCP/IP। और ये जो डिवीजन कहलाते हैं, जो पार्ट्स कहलाते हैं, इनको हम डेटा पैकेट्स बोलते हैं, ठीक है। और डिफरेंट डेटा पैकेट्स में जब ये डिवाइड हो जाएगा तो डिफरेंट डेटा पैकेट्स की फॉर्म में इसको सेंड किया जाएगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर। और जब ये रिसीव हो जाएंगे तो फिर ये पैकेट्स अगेन अपने आप को ये अगेन कंबाइंड होंगे, और कंबाइंड होकर फिर ये कंप्लीट एक जो मैसेज था उसकी फॉर्म में ये फिर से मिल जाएंगे रिसीवर को। तो इस तरीके से ये TCP/IP वर्क्स करता है। मतलब ये है कि इसमें अगर डेटा वन टाइम में, अगर सिंगल टाइम में अगर डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एक बार में डेटा ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है, देन डेटा इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, एंड दैट पार्ट आर कॉल्ड द पैकेट्स। इनको पैकेट्स कहा जाता है, और पैकेट्स फिर रीअसेंबल भी होते हैं रिसीविंग एंड पर। तो ये भी इसकी एक फंक्शनैलिटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड पॉइंट ये है, जैसे आपने इसके अंदर देखा, आपने ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ।
जिस रूट से अगर भेजा जा रहा है, डेटा भेजा जा रहा है और वो रूट अनअवेलेबल है या कंजेस्टेड है, वहाँ पर डेटा पहले से ही ट्रेवल कर रहा है, तो उस केस में ये इंश्योर करता है कि उसको डिफरेंट रूट प्रोवाइड किया जा सके। टीसीपी आईपी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो अभी इसके अंदर 2 पॉइंट्स निकल के आए हमारे पास कि टीसीपी आईपी डेटा को सेंड करता है वन कंप्यूटर टू अनदर। इन दैट केस डेटा इज लार्ज, और हम ये कह सकते हैं कि डेटा अगर एक बार में डिलीवर नहीं हो रहा है, देन डेटा इज डिवाइडेड और मैसेज इज डिवाइडेड इनटू पैकेट्स, ओके, एंड देन दीज पैकेट्स आर रीअसेंबल एट द अदर एंड। तो ये फिर अदर एंड पर जाके फिर से रीअसेंबल हो जाते हैं, और जो रूट है अगर वो कंजेस्टेड है या अनअवेलेबल है, इन दैट कॉज इन दैट टाइम टीसीपी आईपी फिर डिफरेंट रूट भी प्रोवाइड कराता है इसको। थर्ड पॉइंट देखिए, टीसीपी आईपी डिवाइड द डिफरेंट कम्युनिकेशन टास्क इनटू लेयर्स, ईच लेयर हैज डिफरेंट फंक्शंस। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी जितने भी कम्युनिकेशन टास्क हैं, जब जो कम्युनिकेशंस में फॉलो किए जाते हैं, उनको डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। इसे हम टीसीपी आईपी मॉडल भी बोलते हैं, जो एक स्टैंडर्ड मॉडल है। तो इसमें 4 लेयर्स होती हैं, और 4 लेयर्स ये डिसाइड करती हैं कि डेटा किस तरीके से एक कंप्यूटर के थ्रू दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होगा। और सभी लेयर्स का एक प्री डिफाइंड वर्क होता है, वो उतना काम करती हैं, और डेटा एक लेयर के बाद दूसरे लेयर के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हम लेयर्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में तो डेटा गोज थ्रू 4 इंडिविजुअल लेयर्स बिफोर इट इज रिसीव्ड ऑन द अदर एंड। तो अगर अदर एंड पर जब वो रिसीव होगा तो 4 डिफरेंट लेयर्स के थ्रू डेटा ट्रेवल करेगा, एंड TCP IP then goes through these layer in this reverse order to reassemble the data and to present it into the recipient। तो अभी क्या है कि जब डेटा जो TCP/IP के डिफरेंट लेयर्स हैं, रिसीवर एंड पर भी वही लेयर्स होंगी और सेंडर लेयर्स पर भी वही लेयर्स होंगी, लेकिन सेंडर लेयर के जस्ट अपोजिट जो रिसीवर एंड पर जो लेयर्स होंगी वो वर्क करेंगी, ठीक है। जैसे रिसीवर एंड सेंडर लेयर पर सेंडर लेवल पर अगर लेयर्स 1 2 3 4 हैं, तो अभी ये जब रिसीवर एंड पर जाएंगी तो डेटा जो रिसीव होगा वो 4 3 2 1 के ऑर्डर में रिसीव होगा। तो जस्ट रिवर्स हो जाता है वो आपका। अभी आपको शायद उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कि किस तरीके से काम करता है आपका ये। एक मिनट, ओके, दीज आर द डिफरेंट लेयर्स। ये डायग्राम है टीसीपी आईपी का, ओके। नाउ आई थिंक इट इज क्लियर विजिबल टू ऑल ऑफ यू। दैट इज अ क्लाइंट एंड दैट इज अ सर्वर। तो क्लाइंट से सर्वर की तरफ हम डेटा का ट्रांसफर कर रहे हैं। आप एरो की डायरेक्शन देख सकते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरो। तो ये लेयर्स हैं, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, उसके बाद है नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। दीज आर द 4 लेयर्स ऑफ टीसीपी आईपी। तो टीसीपी आईपी की 4 लेयर्स है जिसके थ्रू डेटा आपका ट्रेवल करता है। और जब ये सर्वर पर जाएगा तो देखिए, अब सबसे पहले डेटा लिंक लेयर के थ्रू जाएगा, देन नेटवर्क लेयर, एंड देन ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड देन आफ्टर जस्ट लास्ट एट लास्ट एप्लीकेशन लेयर। तो देखिए, एप्लीकेशन लेयर जहाँ क्लाइंट साइड में सबसे पहली लेयर थी, वहीं सर्वर पर ये सबसे लास्ट वाली लेयर हो जाएगी, क्योंकि जब रिसीव होगा तो डेटा लिंक लेयर के थ्रू होगा। तो ये डिफरेंट लेयर्स। अभी मेरा आपको समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि टीसीपी आईपी में डिफरेंट 4 लेयर्स होती हैं, और 4 लेयर के थ्रू डेटा ट्रेवल करता है आपका क्लाइंट में और सर्वर में। ये जस्ट रिवर्स ऑर्डर में फॉलो होती हैं। क्लाइंट का जो ऑर्डर है वो सर्वर का ऑर्डर नहीं रहेगा, और सर्वर के ऑर्डर में जस्ट वो रिवर्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एप्लीकेशन लेयर इज द फर्स्ट लेयर एज फार एज क्लाइंट साइड इज कंसर्न, बट एप्लीकेशन लेयर इज द लास्ट लेयर एज फार एज सर्वर साइड इज कंसर्न, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो डेटा लिंक लेयर जो है आपका लास्ट लेयर है क्लाइंट साइड में, लेकिन सर्वर साइड में वही फर्स्ट लेयर बन जाती है। तो ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाता है इसका। चलिए, तो ये 4 लेयर्स होती हैं, याद रखना है। इसको टीसीपी आईपी मॉडल भी बोलते हैं। तो ये काफ़ी फेमस मॉडल है आपका, और एग्जाम में पूछा भी जाता है आपको। तो ये लिखा भी हुआ देखिए, मीडिया फॉर डेटा ट्रांसफर, कि किस तरीके से डेटा ट्रांसफ़र होगा। अभी हमको इन लेयर्स के बारे में पढ़ना है कि लेयर्स क्या टास्क परफॉर्म करती हैं और ये किस तरीके से काम करती हैं। तो चलिए देखते हैं। Okay, TCP/IP. The 4 layers of the TCP/IP model. So first layer is data link layer. So the data link layer, and it is also called as the link layer or network interface layer और फिजिकल लेयर, इसको फिजिकल लेयर भी बोलते हैं, कॉमनली तो सिर्फ फिजिकल लेयर ही बोलते हैं, इज व्हाट हैंडल्स द फिजिकल पार्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा यूजिंग द ईथरनेट केबल, वायरलेस नेटवर्क, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, डिवाइस ड्राइवर इन द कंप्यूटर एंड सो ऑन। तो बेसिकली चूंकि इसका नाम ही आप समझ गए होंगे, फिजिकल लेयर, तो ये फिजिकल पार्ट्स को डील करती है कि कौन कौन से फिजिकल पार्ट उस नेटवर्क में ट्रांसफर में इन्वॉल्व है। जैसे ईथरनेट केबल है,
या वायरलेस नेटवर्क है या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, जिसे एनआईसी कार्ड बोलते हैं हम, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर्स हैं, तो ये सभी कौन कौन से फिजिकल पार्ट्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो उनको डील करने का काम ये डेटा लिंक लेयर करती है। तो ये इसका काम सिर्फ फिजिकल पार्ट्स को डील करना होता है आपको। तो लिखा भी हुआ द डेटा लिंक लेयर ऑल्सो कॉल्ड द लिंक लेयर, नेटवर्क इंटरफेस लेयर और फिजिकल लेयर इज व्हाट हैंडल्स द फिजिकल पार्ट ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग डेटा यूजिंग द फिजिकल पार्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा। तो डेटा सेंड करने में और रिसीव करने में जो भी फिजिकल पार्ट यूज़ हो रहे हैं, चाहे वो केबल यूज़ हो रही है, चाहे वो आपका एनआईसी कार्ड हो रहा है। एनआईसी कार्ड अगर आपको नहीं पता है तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, और जब तक ये कार्ड नहीं होगा कंप्यूटर में या लैपटॉप में तो आप नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो जो भी फिजिकल पार्ट्स हैं और या डिवाइस ड्राइवर्स हैं उनके, ये सब इनको डिवाइस ड्राइवर्स वो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हार्डवेयर को रन करने के लिए प्रॉपर्ली रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप को प्रिंटर अगर आपको अटैच करना है अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से, तो आपको उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा अपने में। तो इसी तरीके से जितने भी आपके ये हार्डवेयर्स आते हैं वो सभी डिवाइस ड्राइवर्स के साथ आते हैं। तो अभी इसमें क्या है कि जो डेटा लिंक लेयर है जो फिजिकल पार्ट्स के साथ डील करती है, ठीक है। जैसे आपका कोई वायरलेस नेटवर्क हो गया, ईथरनेट केबल हो गई, ईथरनेट केबल लैन केबल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया, तो इनके साथ डील करता है, या फिर डिवाइस ड्राइवर के साथ डील करता है ये आपका डेटा लिंक लेयर, इसलिए इसको फिजिकल लेयर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट लेयर। द इंटरनेट लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड द नेटवर्क लेयर, कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द पैकेट्स अराउंड द नेटवर्क। अब सेकेंड लेयर डेटा लिंक लेयर के बाद फिर नेक्स्ट लेयर आती है इंटरनेट लेयर। तो इंटरनेट लेयर क्या काम करेगा? इंटरनेट लेयर बेसिकली कंट्रोल करता है पैकेट्स का नेटवर्क के थ्रू, किस तरीके से पैकेट्स मूव करेंगे वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, ठीक है। तो मतलब नेटवर्क में किस तरीके से एक जगह से पैकेट दूसरी जगह मूव करेंगे, ये टोटली आपका इंटरनेट लेयर का काम होता है। इसलिए पॉइंट लिखा भी हुआ था, इंटरनेट लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड द नेटवर्क लेयर, कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द पैकेट्स अराउंड द नेटवर्क। तो जो भी पैकेट्स का मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने का काम आपका इंटरनेट लेयर करता है आपका, और इसको इसलिए हम नेटवर्क लेयर भी बोलते हैं। पैकेट्स को मैंने बताया था कि डेटा जब एक बार में डिलीवर नहीं होता तो उसे डिफरेंट पीसेस में डिवाइड कर दिया था, दैट पीसेस आर कॉल्ड द पैकेट्स, उन पीसेस को ही हम पैकेट्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर। द ट्रांसपोर्ट लेयर इज व्हाट प्रोवाइड द रिलायबल डेटा कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस and it divides the data in packets, acknowledge the packet that it has received from the other device and make sure that the other device acknowledges the packet it receives। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है कि ये डेटा को पैकेट्स में डिवाइड करती है, और ये इंश्योर भी करती है, एक्नॉलेज भी करती है कि ये जो पैकेट है जो रिसीव्ड हुआ अदर डिवाइस से, कि ये पैकेट्स उसने भेजा है या नहीं भेजा है, ठीक है। तो ये पैकेट्स को ये डेटा को पैकेट्स में डिवाइड करने का काम करती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थी इसका एक्नॉलेजमेंट होता है सेंडर का रिसीवर के थ्रू, रिसीवर का सेंडर के थ्रू, कि ये डेटा पैकेट्स प्रॉपरली भेजा गया है मशीन से या नहीं, ठीक है। तो ये काम आपका होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो एक बार मैं फिर से इसे रीड कर देता हूँ। द ट्रांसपोर्ट लेयर इज व्हाट प्रोवाइड रिलायबल डेटा कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस एंड इट डिवाइड द डेटा इन पैकेट्स, acknowledge the packet that it has received from the other device and make sure that the other device acknowledge the packet it receives। तो एक्नॉलेजमेंट का काम होता है पैकेट्स का, और पैकेट्स और डेटा को पैकेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा को तो पैकेट्स में डिवाइड करने का काम करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर, और सेकंड इज एक्नॉलेजमेंट होगा उसका, एक्नॉलेज करेगा कि ये डेटा पैकेट भेजा गया है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ। नेक्स्ट है एप्लीकेशन लेयर। देखिए इसमें एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि सेंडर रिसीवर पर टू डिफरेंट डिवाइसेस अटैच होंगी, तो सेंडर का डेटा भेज रहा है पैकेट्स की फॉर्म में, तो रिसीवर एक्नॉलेज करेगा ये प्रॉपर सेंडर के थ्रू आया है या नहीं आया है, तो ये काम भी होता है इसका। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन लेयर। द एप्लीकेशन लेयर इज अ ग्रुप ऑफ एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर नेटवर्क कम्युनिकेशन। This is what the user typically interact with, such as email and messaging. Because the lower layer handles the details of the communication, the application does not need to concern themselves with this। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे मेन लेयर आपकी एप्लीकेशन लेयर ही है, ठीक है। और एप्लीकेशन लेयर पे ज़्यादातर प्रोटोकॉल्स काम करती हैं आपकी, अभी हम आगे पढ़ेंगे जो HTTP है, HTTPS है, SMTP है, सब एप्लीकेशन लेयर पर ही काम करती हैं। तो एप्लीकेशन लेयर है क्या? एप्लीकेशन लेयर जैसा इसका नाम है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर इज अ ग्रुप ऑफ एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर नेटवर्क कम्युनिकेशंस। तो ये ग्रुप ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं जिनको नेटवर्क कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और यही वो लेयर होती है जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है, इसी के थ्रू इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन लेयर के थ्रू, ठीक है। तो
बाकी ये ट्रांसपोर्ट लेयर और इनके थ्रू यूज़र का कोई इंटरेक्शन नहीं होता। यूज़र का इंटरेक्शन सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन लेयर के थ्रू होता है। तो ये बात यहाँ पर समझ जाना चाहिए। जैसे वो ईमेल कर रहा है या मैसेज कर रहा है तो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ही डील करेगा यूज़र। तो जो लोअर लेयर्स हैं अभी जहाँ कम्युनिकेशन की डिटेल्स को हैंडल करती हैं, एप्लीकेशन लेयर का इन सब से कोई मतलब नहीं होता। एप्लीकेशन लेयर का यूज़र इंटरेक्शन से मतलब होता और इसका कोई मतलब नहीं होता। तो चलिए ये 4 लेयर्स हो गई। एक बार फिर से हम डायग्राम को देखते हैं। ये डायग्राम है आपका, ठीक है। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर डेटा लिंक लेयर। तो हार्डवेयर को मैनेज करने का काम ये डेटा लिंक लेयर करेगा। देन नेटवर्क लेयर, ठीक है। और जिसे नेटवर्क लेयर के बाद है ट्रांसपोर्ट लेयर, और ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद सबसे लास्ट में एप्लीकेशन लेयर। आप देख भी पा रहे हैं क्लाइंट डायरेक्टली एप्लीकेशन लेयर से डील कर रहे हैं। और जब ये डेटा सेंड होगा आपका क्लाइंट से सर्वर की तरफ, तो फिर सबसे पहले डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर एंड देन आफ्टर एप्लीकेशन लेयर। तो ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो ये ऑर्डर याद रखना है, डिफरेंट लेयर्स याद रखनी है, डिफरेंट लेयर्स का ऑर्डर याद रखना है, और डिफरेंट लेयर्स की वर्किंग याद रखनी है। तो एग्जाम में अगर TCP/IP आता है तो TCP/IP की डेफिनेशंस, उसका ये डायग्राम किस तरीके से काम करता है, TCP/IP की दोनों के बारे में, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल दोनों के बारे में पॉइंट्स लिखने हैं आपको, डेफिनेशन लिखनी है, फुल फॉर्म लिखनी है, और ये डायग्राम मेंशन करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आना ही है इसको, ठीक है। तो आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा। आई थिंक सभी पॉइंट डिस्कस हो गए इसके TCP/IP के। आगे चलते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कि इंटरनेट एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल की। तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कौन कौन सी होती हैं ये हम ज़रा देख लें। एप्लीकेशन लेयर पर जो प्रोटोकॉल्स काम करती हैं उनके बारे में बात हो रही थी। तो मैक्सिमम जो लेयर्स होती हैं, मैक्सिमम जो प्रोटोकॉल्स होती हैं एप्लीकेशन लेयर पर ही काम करती हैं। जैसे DNS है, HTTP है, HTTPS है, ठीक है, SMTP है, और POP है आपकी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, या FTP है, फाइन ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये सभी प्रोटोकॉल्स जो आपके सिलेबस में। तो चलिए 1 बाई 1 को भी रीड करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट है SMTP। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले उसकी फुल फॉर्म क्या है। पहले आप एग्जाम में आता है तो पहले फुल फॉर्म लिखें, देन उसका कुछ डिस्क्रिप्शन लिखें जो आपको पता है कि एग्जैक्टली किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, कहाँ यूज़ होती है। देन आफ्टर उसकी डिटेल, अगर क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा है, मान लीजिए 2 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, तो उसके हिसाब से लिखें। कोशिश करें डायग्राम बनाने की। जैसे TCP/IP में डायग्राम था, तो TCP/IP आता है एग्जाम में तो आपको डायग्राम के साथ उसे रिप्रेजेंट करना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो पहले SMTP को हम देखते हैं। SMTP क्या है? तो SMTP क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो एक बात यहाँ से कुछ हमें हिंट मिलती है, एक आइडिया लगता है कि ये जो हम ईमेल करते हैं ये कुछ उससे रिलेटेड है, और ऐसा ही है, ऐसा है भी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो SMTP इज शॉर्ट फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को ही SMTP शॉर्ट में बोला जाता है। और ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, यानी कि TCP/IP मॉडल में ये एप्लीकेशन लेयर पर वर्क करती है। इसको भी याद रखिएगा आप, ठीक। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड फॉर सेंडिंग द ईमेल एफिशिएंटली एंड रिलायबली ओवर द इंटरनेट। तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो हम ईमेल सेंड करते हैं ये एफिशिएंटली और रिलायबली इंटरनेट पर सेंड हो जाए। यानी हमने सेंड कर दिया तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी SMTP की ये होती है कि ये प्रॉपर वे में, सही तरीके से ये ट्रांसफ़र हो जाए आपका दूसरी मशीन पर जहां हमने इसको सेंड किया है। तो SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, and SMTP is a set of communication guidelines that allows software to transmit an electronic mail over the internet, and it's called the simple mail transfer protocol, and it is a program used for sending message to other computer users based on the email addresses. तो शॉर्ट में ये जो थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, इसका समराइज कर दिया गया है। तो सिर्फ 1 मार्क में क्वेश्चन आता है तो आपको इतना ही लिखना होगा। ये फोर्थ पॉइंट लिख दीजिएगा, दैट इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट आई थिंक। तो SMTP सबसे पहले सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को SMTP बोलते हैं, और ये सेट ऑफ रूल्स होती है। सेट ऑफ रूल्स को प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। तो आप सेट ऑफ कम्युनिकेशन गाइडलाइन बोलें या प्रोटोकॉल लिखते हैं, एक ही बात है। और दैट अलाउज सॉफ्टवेयर टू ट्रांसमिट एन इलेक्ट्रॉनिक मेल ओवर द इंटरनेट। तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो हम ईमेल भेजते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजते हैं, वो प्रॉपर वे में इंटरनेट पर ट्रांसफ़र हो जाए, सही तरीके से, रिलायबल वे में, और हम कहें एफिशिएंटली और रिलायबली ये ट्रांसफ़र हो जाए। और चलिए,
आगे देखते हैं कुछ इसके और पॉइंट्स। अभी इसकी थोड़ी वर्किंग देख लेते हैं। तो एग्जाम में अगर आता है तो देखिए डायग्राम पर आपको फोकस होना चाहिए। जब आप फुल फॉर्म लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो उसके साथ अगर आप डायग्राम लिख देते हैं तो डायग्राम मेंशन कर देते हैं, तो ये याद रखिएगा कि फिर उसमें आपके मार्क्स कट होने की पॉसिबिलिटी नील हो जाती है। तो उसमें फिर ऐसा नहीं होगा कि आपके मार्क्स कट हो जाएंगे किसी भी बेसिस पर, तो क्योंकि आपने फुल फॉर्म लिखी, आपने डायग्राम मेंशन किया और आपने डेफिनेशन लिखी। तो ये 3 स्टेप्स याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ये देखा जाता है आपका। तो इसका डायग्राम है, डायग्राम देखने से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 2 पार्टीज इन्वॉल्व होंगी इसके अंदर, एक होगा सेंडर और एक होगा रिसीवर। ठीक, एक होगा सेंडर और एक होगा रिसीवर। सेंडर से रिसीवर की तरफ मेल जाएगा, तो किसके थ्रू जाएगा? मेल करना है तो SMTP के थ्रू। तो एक सेंडर्स का मेल सर्वर होगा, तो सबसे पहले SMTP की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी मेल सर्वर पर वो मेल को ट्रांसफ़र कर दे। फिर इंटरनेट के थ्रू SMTP रिसीवर्स मेल सर्वर पर मेल को ट्रांसफ़र करेगी, और रिसीवर मेल सर्वर से रिसीवर को जो मेल मिलेगा वहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी POP और IMAP। ये भी प्रोटोकॉल्स होती हैं, ये भी एप्लीकेशन लेयर पर वर्क करती हैं। तो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रिसीवर को ये जो मेल है ये ट्रांसफ़र कर दें। तो ये टोटल इसका स्ट्रक्चर। अच्छा, POP और IMAP के बारे में हम अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बात सिर्फ SMTP की चल रही है, इसलिए SMTP को बताया है। तो ये डायग्राम भी याद रखिएगा। ठीक है, एक दो बार इसको ड्रॉ करके देखिएगा। और एग्जाम में अगर SMTP आता है तो SMTP की डेफिनेशन, SMTP की फुल फॉर्म और ये डायग्राम आपको मेंशन करना ही है। मिनिमम आपको इतना तो करना ही है, कंप्लीट अगर जितना है इस स्लाइड के अंदर उतना कर देंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट फुल फॉर्म, डेफिनेशन और उसका पर्पस एंड देन ये डायग्राम मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डायग्राम बेसिकली डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन कॉन्सेप्ट को बता देता है सामने वाले को कि किस तरीके से ये वर्क करती है। तो इसकी वर्किंग का डायग्राम है SMTP की, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए आगे देखते हैं, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। SMTP इज ए पुश प्रोटोकॉल, डेटा को मेल को सेंड करने का काम करती है, इसलिए इसे पुश प्रोटोकॉल बोल सकते हैं हम इसे। SMTP यूजेस TCP एट द ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो SMTP TCP को ट्रांसपोर्ट लेयर को यूज़ करती है। देन SMTP यूज़ पोर्ट नंबर 25। जितनी भी ये आपकी ये प्रोटोकॉल्स होती हैं, इनका एक पोर्ट होता है, तो जिसके थ्रू ये वर्क करती हैं, तो आपको पोर्ट नंबर भी याद रखना है इसका नेटवर्क में। तो ये पोर्ट नंबर 25 को यूज़ करती है SMTP। Then SMTP use persistence TCP connection so it can send multiple emails at once। तो ये एक बार में एक से ज़्यादा ये ईमेल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। SMTP इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तब ये डेटा ट्रांसफ़र होता है। SMTP स्टेटलेस प्रोटोकॉल। स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि प्रीवियस क्या स्टेट थी इससे कोई मतलब नहीं है इसका, इसमें स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, डेटा सेंड होना है रिसीवर से सेंडर की तरफ, तो डिफरेंट स्टेट्स फॉलो नहीं होती कि ये स्टेट है रेडी है, फिर ये सेंड हुआ और नहीं हुआ, ये सब इसमें कोई मैटर नहीं करता। ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, इसमें डिफरेंट स्टेट्स कोई मैटर नहीं करती। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स SMTP है। तो सिंपल 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पुश प्रोटोकॉल है, पोर्ट नंबर 25 को यूज़ करती है। ठीक है, और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा तब ईमेल ट्रांसफ़र होगा। स्टेटलेस प्रोटोकॉल से, और इससे मल्टीपल ईमेल्स को एक बार में सेंड किया जा सकता है। ओके, तो ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अगर ये क्वेश्चन अगर मोर देन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आता है तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखनी होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स सिंपल है, पुश प्रोटोकॉल, यूज पोर्ट नंबर 25, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल और स्टेटलेस प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल्स की जहाँ तक बात है तो 3 को आप एक साथ लिख सकते हैं। इसको एक तो पहले लिखिए कि ये पुश प्रोटोकॉल है, पॉइंट नंबर 1, वेट अ मिनट, पुश प्रोटोकॉल है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, पॉइंट नंबर 2, स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, और इसके बाद पॉइंट लिखिए आप SMTP यूज पोर्ट नंबर 25, पॉइंट नंबर 4। थोड़ा ऑर्डर चेंज कर दीजिएगा इसका, ठीक है, क्योंकि सिमिलरिटी रहेगी। पोर्ट नंबर 25 को यूज़ करती है। नेक्स्ट इज ये आपका SMTP यूजेस persistent TCP कनेक्शन सो इट कैन सेंड मल्टीपल ईमेल्स एट वंस। और लास्ट में ये SMTP यूज TCP एट ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये आपके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे, अभी हमारा काफ़ी बचा है, POP, देन
टीओपी के बाद आता है आईएमएपी, आईएमएपी के बाद है आपका एचटीटीपी, एचटीटीपीएस और उसका बीच में डिफरेंस। तो ये सभी नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।